Now we will study about the other research design and the qualitative design. As in the earlier class we have studied about the experimental design. That comes under the quantitative design, experimental and non-experimental design. And this is the additional design which also comes under the quantitative research design. In the experimental research design means in the quantitative research design we have studied about the experimental, non-experimental design. In the experimental there are three types of design: true experimental, quasi-experimental and pre-experimental. Under that also there are various types of designs as we have studied. And in the non-experimental studies also we have there are different types of design like descriptive design, correlational design, the developmental designs, case study design, survey design. That comes under the non-experimental design. Now the other additional designs. In the other additional designs, first is the methodological studies, meta-analysis, secondary data analysis, outcome research, evaluation studies and the operational research. Other studies also: phenomenological research, ethnographic research, grounded theory, case studies, historical and the action research. First we will study about the methodological studies. In the methodological studies, the research means we are conducting a research. Why we are conducting a research? To develop and test the evaluation research. Means we are assessing in this type of study, means in the methodological studies we are assessing, means we are evaluating and testing and developing the different types of instruments and the methods we are applying in the research. For that we are choosing the methodological studies. Next is the meta-analysis. Meta-analysis means we are taking a different types of quantitatively studies, means we are taking different types of studies of a same topic and combining and integrating in one पर्टिकुलर और इन अ पर्टिकुलर रिसर्च. ठीक है, एक रिसर्च लेते हैं हम, उसको क्या करना है हमको कि बहुत सारे रिसर्च मीन्स अगर बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं तो उसको हम लेके एक कॉमन रिसर्च में उसके रिज़ल्ट को हम एनालाइज करते हैं एक कॉमन रिज़ल्ट में लेके. ठीक है, तो वो हम बोलते हैं उसको मेटा एनालिसिस. मीन्स पर्टिकुलर टॉपिक को हम एक रिसर्च स्टडी में क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं बहुत सारे जो रिसर्च ऑलरेडी हो चुके हैं. सेकेंड इज द सेकेंडरी डेटा एनालिसिस. इसमें क्या करते हैं, इट इज़ अ रिसर्च डिज़ाइन इन विच द डेटा कलेक्टेड इन वन रिसर्च. मीन्स जो डेटा इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक रिसर्च में हम क्या कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, री एनालाइज कर रहे हैं. जो बहुत सारा हमारा रिसर्च हो चुका है उसको हम लेके फिर से एक पर्टिकुलर टॉपिक में उसको री एनालाइज कर रहे हैं जो कि अदर रिसर्चर ने उसको कर चुका है. और इसको हम क्यों करते हैं, यूजुअली टू डेवलप अ न्यू हाइपोथेसिस. ठीक है, न्यू हाइपोथेसिस जो हम टेस्ट करेंगे, जो रिज़ल्ट हमारे पास ऑलरेडी है, जो बहुत सारे रिसर्चर्स ने उसको कर चुका है, उसको हम फिर से लेंगे एक कॉमन स्टडी में, उसको बहुत सारे स्टडीज़ को हम करेंगे और न्यू हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे और उसको हम टेस्ट करेंगे. नेक्स्ट है आउटकम रिसर्च. आउटकम रिसर्च में क्या आता है, इट इन्वॉल्व्स द इवैल्यूएशन ऑफ द केयर. मीन्स इसमें आउटकम, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट आउटकम, मीन्स जो हम प्रैक्टिस दे रहे हैं. ठीक है, एक इवैल्यूएशन ऑफ द केयर प्रैक्टिसेस एंड सिस्टम्स इन अ प्लेस. मीन्स जो हम केयर दे रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, उस केयर समझ लो हम किसी केयर के ऊपर कुछ रिसर्च किए हैं. ठीक है, तो उसमें हमारे पास कुछ फाइंडिंग्स आई है, उस फाइंडिंग को हम क्या कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं एज अ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. उसको फिर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे अपने डेली नर्सिंग केयर में. तो ये हमारे पास क्या होगा, इससे हमारा जो एक्शन है, जो हम केयर करेंगे दूसरे पर्सन में, उसका हमारा जो केयर है वो इम्प्रूव होगा. ठीक है, तो ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है और इससे क्या होता है, अपने नर्सिंग केयर में इम्प्रूवमेंट होती है. नेक्स्ट इज़ द इवैल्यूएशन
स्टडीज़, इवैल्यूएशन स्टडीज़ को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्रोग्राम इवैल्यूएशन, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ प्रोग्राम इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन रिसर्च is a systematic assessment of the worth of time, money, effort and resources. ठीक है, ये क्या है? हम इसको क्या करते हैं? असेसमेंट, सिस्टमेटिक असेसमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसको सिस्टम वाइज करते हैं, मीन्स सीक्वेंस वाइज करते हैं, ठीक है. इसको हम इवेलुएट करते हैं, जैसे कि टाइम को हमको इवेलुएट करना है, मनी, एफर्ट, हमने कितना यूज़ किया है उसको हमको इवेलुएशन करना है, और द रिसोर्सेज, जो हम कुछ कर रहे हैं स्टडीज़, तो उसमें क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ हुआ है, स्पेंड इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल, मीन्स हमको एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए हमने कितना मनी, कितना टाइम, कितना एफर्ट अप्लाई किए हैं, उसको हम क्या करते हैं? इवेलुएट करते हैं, ठीक है. और ये इवेलुएशन हम क्यों करते हैं? वाई वी आर डूइंग द इवेलुएशन? टू इम्प्रूव आवर प्रैक्टिस, ठीक है. एसेस द इफेक्ट, कुछ हम अगर दे रहे हैं तो उसका इफेक्ट हमको देखना है ना. अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ तो हमको उसको क्या करना है? मुझे उसका इफेक्ट देखने के लिए मुझे इवेलुएशन लेना पड़ेगा, ठीक है. फिर बिल्ड अ कैपेसिटी, कि हमारे पास उतनी कैपेसिटी है कि नहीं है करने की, तो वो क्या करता है? इवैल्यूएशन हमको ये परफॉर्मेंस जो हम परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे इवैल्यूएशन हमारी हेल्प करता है, ठीक है. इसमें 2 टाइप्स के इवैल्यूएशन होते हैं. 2 टाइप्स के इवैल्यूएशन में क्या क्या है? समेटिव इवैल्यूएशन एंड द इन्फॉर्मेटिव, ये समेटिव इवैल्यूएशन एंड द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. समेटिव इवैल्यूएशन क्या है? एज द एक्स पोस्ट इवैल्यूएशन. एक्स पोस्ट इवैल्यूएशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हम आफ्टर द इवेंट्स परफॉर्म करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमको इवैल्यूएट करना है, तो ये जो फाइनल एग्ज़ाम का आपका रिजल्ट आएगा उससे हम इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है, कि किसका कितना परसेंटेजेस है. इट प्रोवाइड्स अ क्वांटिटेटिव डेटा एंड आर फोकस्ड इन आउटकम्स. ये आउटकम, जैसे कि हम कोई वर्कशॉप कर रहे हैं, वर्कशॉप में हमारा कितना परफॉर्मेंस रहा, कितना आउटकम आया, उसको हम क्या करेंगे? लास्ट में इसको हम एसेस करेंगे. और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जैसे कि हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, इस बीच में हम क्या करेंगे? आपका टेस्ट लेंगे, क्लास टेस्ट हो गया, और एंड ऑफ द टीचिंग में ओरल टेस्ट हो गया, ठीक है, और यूनिट टेस्ट हो गया, टर्म हो गया. ये सब क्या है? ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है. इसको हम क्या करते हैं? जज करते हैं, ठीक है. किसी प्रोग्राम, किसी प्रैक्टिस या किसी प्रोसीजर या किसी पॉलिसी को हमको क्या करना है? जजमेंट करना है. दैट इज़ इवैल्यूएटिव स्टडीज़. नेक्स्ट इज़ द ऑपरेशनल रिसर्च. ऑपरेशनल रिसर्च क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन को हमको क्या करना है, और जो उसने सर्विस दिया है वो इसको इन्वॉल्व करते हैं, ताकि इसमें न्यू नॉलेज डेवलप हो सके, या तो अबाउट द इंस्टीट्यूशन जिसके ऊपर हम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन हो गया, प्रोग्राम्स हो गए, फैसिलिटीज़ हो गई, ताकि इससे क्या करें? इससे हमारा क्या पता चले? ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जो ह्यूमन जो प्रैक्टिस दे रहा है, जो वर्क कर रहा है, उससे क्या हो कि इम्प्रूवमेंट पता चले हमारे और ऑर्गेनाइजेशन की, मीन्स जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है उसकी कितनी एफिशिएंसी है, और वो एफिशिएंसी हमारा इस रिसर्च के थ्रू, मीन्स अगर हम कुछ प्रोवाइड करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, या तो फिर हम देखते हैं उसका, तो उससे क्या होता है? इम्प्रूवमेंट होगा कि उस पर्सन को कितना नॉलेज है और कितना हमको इंक्रीज़ करना है. सो दीज आर द quantitative research design, in which experimental and non-experimental I have dealt earlier, and now I have dealt other research design. Now I will start the qualitative research design. Okay, in the qualitative research design, first is the phenomenological research. Phenomenological research means we are examine the human experience, ठीक है, through the descriptions. जो हम ये इसमें क्या करेंगे? ह्यूमन एक्सपीरियंस देखेंगे, मतलब कि जो पर्सन, जैसे हमको कुछ
फ्यूचर का देखना है तो वो किससे पता चलेगा, जो फ्यूचर में रहा होगा उससे, उसके थ्रू हमको अच्छे से पता चलेगा एक्सपीरियंस कि वो कैसा कैसा था, वो डिस्क्राइब करके बताएगा हमको, ठीक है। और जो पीपल इन्वॉल्व हुए वही डिस्क्राइब कर पाएंगे, या तो फिर हम किसी डायरी से हो गया, या तो फिर हम डायरी के थ्रू हो गया, या तो फिर इन डेप्थ इंटरव्यू हो गया उसके थ्रू हम, या तो फिर कोई रिटन मटेरियल हमारे पास हो गया जो फ्यूचर के बारे में रखा हुआ है या जो हमको चाहिए, उसके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उसके थ्रू हम इसको इस स्टडी को कर सकते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट इज़ द एथनोग्राफिक रिसर्च। इन द एथनोग्राफिक रिसर्च इट इन्वॉल्व्स द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द सर्टेन कल्चरल ग्रुप्स, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एथनिक्स देखने, एथिक देखना है ना, तो इसमें हमको कल्चरल ग्रुप से क्या करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। बाय लीविंग द पीपल मीन्स जो पीपल, इसमें भी वही है कि जो पीपल उनके साथ रह रहे थे या रह रहे हैं उन्हीं के थ्रू हमको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगा। उसको हम की इन्फॉर्मेंट्स भी बोल सकते हैं कि वो उनके साथ रह रहे थे तो उनको वो उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन है। आर टू बी कलेक्टेड एंड मोस्ट नॉलेजेबल अबाउट द सेलेक्टेड कल्चर, ठीक है। जो उसके साथ रह रहा था उसको ज़्यादा नॉलेज होगा, इसीलिए हम उससे करेंगे, कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी मीन्स वी आर डेवलपिंग अ न्यू थ्योरी या और अ न्यू मॉडल, ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी इट इज़ अ मेथड in naturalistic research that is used primarily to generate the theory। इसमें हम जनरली theory डेवलप करते हैं, ठीक है। theory क्या होती है, it is a collection of explanations, ठीक है। ये explanation का collection है, are generated that explain the subject of research means hypothesis के बारे में वो describe करेगा, ठीक है। that is the grounded theory। case studies means we are taking a single case example and we have to study in depth, ठीक है। वो किसी के बारे में भी हो सकता है, सिंगल पर्सन मीन्स इंडिविजुअल के बारे में भी हो सकता है, किसी इवेंट के बारे में हो सकता है, किसी ग्रुप के बारे में हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा, सिंगल केस स्टडी होगा और उसको हमको इन डेप्थ में स्टडी करना है। Next is the historical research। Historical, the name itself suggests it is related to the history। इसमें systematic collection करना है हमको और objective evaluate करना है, ठीक है। Data related to the past occurrence in order to test the hypothesis, ठीक है। उसमें हम hypothesis को test करेंगे, जो past occurrence हुआ है, कब से हुआ है, कब तक था, कितने लोगों में वो फैला है, ठीक है, या वो किसी ट्रेंड के बारे में हो गया या किसी डिसीज़ के बारे में हो गया। तो ये चीज़ हमको हिस्ट्री से मीन्स फ्रॉम द फुट टू द टॉप बोल सकते हैं कि हमको एक छोटे से चीज़ को फाइंड आउट करना है तो उसको हमको उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके मीन्स हम माइन्यूट देखेंगे तब जाके हमको पूरा लार्ज मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको फ्रॉम अ सिंगल डेटा कलेक्शन हमको करना पड़ेगा, मीन्स छोटा छोटा करके हमको तब हम जाके उस एंड तक पहुंचेंगे, उस रिजल्ट तक पहुंचेंगे, ठीक है। किसी ट्रेंड के बारे में भी हो गया, किसी डिजीज़ कंडीशन के बारे में हो गया, किसी इवेंट के बारे में हो गया, ठीक है। तो वो दैट इज़ हिस्टोरिकल रिसर्च। And last is the action research। Action research is the means we are doing something, ठीक है। we seek action to improve the practices, study and the effect of action to be taken, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। एक्शन लेंगे मीन्स हमको इसमें करना है, परफॉर्म करना है, प्रैक्टिस परफॉर्म करना है, उसके बाद ही हम इसमें क्या करेंगे, उससे क्या होगा, हमारा जो प्रैक्टिस है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ quantitative research design। So I can conclude this topic by what is we have studied about the research design,
ठीक है. रिसर्च डिज़ाइन नेक्स्ट इज द एलिमेंट्स ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन. देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स मीन्स पॉपुलेशन, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च और बोर्ड रिसर्च. पॉपुलेशन हो गया, फिर एसेसिबल पॉपुलेशन, सैम्पल्स हो गया, टूल्स हो गया, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग हो गया, ये मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शंस हो गए. दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन. कि हम रिसर्च डिज़ाइन जब हम करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या क्या होना चाहिए फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम. ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए हमारे पास. हमने समझ लो कि फॉर एग्जांपल एक डेंगू फीवर के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें हमने क्या लिया है, सिर्फ वन ग्रुप लिया है. ठीक है, वन ग्रुप मीन्स वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन लिया है. हमने 60 सैम्पल्स लिया है. 60 सैम्पल्स में हमने कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं रखा, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रखा है. उसी में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसी में प्री टेस्ट करेंगे, उसी में ट्रीटमेंट देंगे, उसी में पोस्ट टेस्ट लेंगे. तो 60, तो दैट कम्स अंडर द प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन. ठीक है, तो इसमें फिर हमने एसेसिबल पॉपुलेशन किसी एक एरिया को लिया, कितने सैम्पल्स लिए. ठीक है, सैम्पल साइज़ कितना होना चाहिए, सेटिंग कहाँ पे होना चाहिए, किस एरिया को लिए, पर्टिकुलर एरिया का नाम होना चाहिए, कौन सा सैम्पल्स लिए, पर्पसिव सैम्पल, कन्वीनियंट सैम्पल. ठीक है, वी हैव टू डिस्क्राइब अबाउट द सैम्पल कि पर्टिकुलर सैम्पल का नाम लिखना है, सैम्पलिंग का नाम लिखना है. उसके बाद टूल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारा क्या करता है, जनरली चेंज करता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स के किसको, रिज़ल्ट को. ठीक है, तो वो उसमें हम क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं. मैनिपुलेशन क्या होता है, जब हम कुछ एक्सपेरिमेंट दे रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, तो उसके थ्रू हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल्स चेंज होगा. ठीक है, फिर उसके बाद हमारा फिर हम प्री टेस्ट किया, फिर एक्सपेरिमेंट दिया, फिर 7 डेज़ बाद या 8 डे में हम पोस्ट टेस्ट करेंगे. ठीक है, उसके बाद हमारा रिज़ल्ट आया, दैट इज़ द रिसर्च डिज़ाइन. फिर नेक्स्ट इज़ द different types of research design. Mainly mostly there are two types of research design, quantitative research design and qualitative research design. In the quantitative research design there are three types: true experimental, quasi and the pre-experimental. In the true experimental, pre-test, post-test only control group design, post-test only control group design, factorial design, crossover design, randomized block design, that comes under the true experimental. In the quasi-experimental, one group pre-test, post-test, randomized design, non-randomized design, in which the two characters are present. ठीक है, इसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, मे बी रेंडमाइजेशन भी प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल में तीनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. और फिर इन द लास्ट प्री एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, इन द क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, वन शॉर्ट केस स्टडी डिज़ाइन ऑल्सो इज़ देयर. In the pre-experimental, one group pre-test post-test design, we are mostly in the nursing field we are mostly using this design, one group pre-test post-test design. In the non-experimental design we are taking it is divided into means इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मैनिपुलेशन नहीं करते इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, लेकिन क्या होता है कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स फिर भी उसका रिज़ल्ट चेंज होके आता है. ठीक है, क्योंकि उसमें हम ट्रीटमेंट तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम उस नॉलेज को एसेस किए, उससे क्या हुआ कि उसमें कुछ चेंजेस आया. मीन्स हम विदाउट एनी मैनिपुलेशन देयर मे बी चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स. और इसमें क्या होता है, इसमें डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन है. डिस्क्रिप्टिव में हम क्या देखते हैं, मोस्टली हम फ्रीक्वेंसी, प्रिवलेंस, इंसिडेंस रेट देखते हैं. ठीक है, और इसमें टू टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस आते हैं. और नेक्स्ट इज़ द कोरिलेशनल डिज़ाइन. ठीक है, फिर ये डेवलपमेंटल डिज़ाइन, केस स्टडी डिज़ाइन, सर्वे डिज़ाइन, दिस comes under the non-experimental design. So this is your experimental, this is your research design and the approaches unit.